students. Today the topic is approach, method, and technique. We'll discuss what is approach, what is method, and what is technology. For teaching, this is very important to have an appropriate approach, method, and technique so that a teacher can achieve its target. So now let's start the discussion. First, definition of approach. Approach is a set of assumptions dealing with the nature of language and language learning. An approach is a way of looking at teaching and learning. Underlying any language teaching approach is a theoretical view of what language is and how it can be learned. An approach gives rise to methods, the way of teaching something, which use classroom activities or techniques to help learners to learn. So first of all, we'll discuss about the approach. अप्रोच क्या होता है? अप्रोच वैसे मैं हिंदी में अगर समझें तो ये एक पहुँच है. Approach is the way in which something is approached. It refers to the direction. It has to be decided before selecting the method. कोई भी शिक्षण क्रिया करने से पहले एक टीचर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अप्रोच, कि उसकी जो है assumptions क्या हैं about the topic which is he going to take in the class. उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अप्रोच से चलें, विच गिव राइज टू मैथड. इसी से हम मैथड तक पहुंचते हैं. सपोज़ अगर मैंने प्लान किया है कि आज मैं क्लास में टेंस पढ़ाऊँगी, आई आर गिविंग यू एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. अब जब टेंस पढ़ाने जा रहे हैं तो देयर इज़ एन एजम्पशन ऑल्सो. हमारी कुछ प्लानिंग्स होते हैं. हम कुछ सोचते हैं कि हम जिस क्लास में जा रहे हैं वहाँ पे बच्चों को कितना नॉलेज है. आर दे अवेयर ऑफ अबाउट द सेंटेंसेस? आर दे अवेयर ऑफ द ग्रामर रूल्स? सो आफ्टर हैविंग सच assumptions इन द माइंड, देन ओनली वी स्टार्ट थिंक अबाउट द मैथड. तो अप्रोच जो है एक तरीके से पढ़ाने के बारे में एक स्टेप उठाना कि हम आज इस टॉपिक को आज लेके जा रहे हैं एंड वील कोरिलेट व्हाट द लर्नर्स हैविंग. Definition of method now. Method is a particular trick, strategy or contrivance used to accomplish an immediate objective. It must be consistent with a method harmony with an approach as well. It is a systematic and scientific way of teaching any subject. It guides the teachers regarding how to teach and how his teaching may be effective. It is a specification of strategies for language learning. Within our approach, there can be several methods. Methods are the procedure in nature. Method का मतलब क्या है? तरीका. ये जब हम कोई मेथड की बात करते हैं, यानी कि जब हम क्लास में जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, ऑलरेडी हमारा टॉपिक सेलेक्ट हो चुका है. अब हमें ये सोचना होगा कि हमारा क्या मेथड होना चाहिए. एक टीचर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है किस टाइप का मेथड से वो अपना लैंग्वेज जो है क्लास लेने जा रहा है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे आ रही कि हाउ टू टीच. अगर मेथड ले रहे हैं तो उसको हम कैसे पढ़ाएंगे. इसमें जो है इम्पॉर्टेंट ये भी हो जाती है कि हाउ इज़ टीचिंग में बी इफेक्टिव, और अपनी टीचिंग को हम इफेक्टिव प्रभावी कैसे बनाएंगे. देयर इज़ अ प्लानिंग इन द माइंड ऑफ द टीचर कि व्हाट शुड द लैंग्वेज ही प्रेजेंटेड, हाउ ही मच फोकस शुड बी प्लेस्ड, what the things he must do for better. जैसे कि हमने बताया था बहुत सारे methods होते हैं. सब grammar translation method, direct method, bilingual method, Dr. West's new method also is there. So it's all depend upon the teacher, the which method is he going to have the class now. Suppose I'm taking the tenses and started the teaching with the grammar translation method, because the tense is a topic which is possible we start with the grammar translation method क्योंकि it's based on translation पर आश्रित है. तो अगर हम grammar translation method से उसको लेके चलते हैं टेंस को, तो मैं समझती हूँ कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम उसको नेटिव लैंग्वेज से भी जोड़ लें और उसका टारगेट लैंग्वेज से भी जोड़ लें. तो मैथड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी मैथड हम स्टेप अडॉप्ट करने जा रहे हैं टीचिंग में, वो कितना प्रभावशाली है और कितना ज़्यादा हम उसमें टीचर्स जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकता है. तो ये एक तरीका है अपनी टीचिंग को और इफ़ेक्टिव वे में करना.
Techniques. Now look at the technique. Technique is a teaching technology or a trick to realize the teaching goal which actually takes place in classroom. Techniques are the activities used in teaching, a concept to obtain an immediate result. It is that which happens within the classroom and is consistent with the method, for example, drills, pair works, brainstorming, etc. Techniques are implementational in nature. टेक्निक मीन्स ट्रिक. अब हमने टॉपिक देख लिया, मेथड भी डिसाइड कर लिया, लेकिन हम उस मेथड को किस ट्रिक के द्वारा पढ़ाएं कि हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, बहुत क्विकली लर्नर्स उस चीज़ को समझ सकें, हम अपने गोल तक पहुंच सकें. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उस टेक्निक को फॉलो करें जो हमारे लर्नर्स के लिए भी इजी हो, टीचर भी उसको अच्छे से करा सके. ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हम ड्रिल के द्वारा कराएं, पेयर वर्क्स के द्वारा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के द्वारा. तो टेक्निक जो है वो एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है. जैसे सपोज़ हम टेंसेस पढ़ा रहे हैं, अब टेंसेस में जो हमारे वर्ब यूज़ है, सपोज़ हम प्रेजेंट टेंस ही बता रहे हैं और हमने क्लास को समझाने के बाद हमने देखा कि बच्चे अभी उसमें 100% नहीं अचीव कर पा रहे हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं जो टीचर चाहता है. तो हम उसमें ड्रिल प्रैक्टिस करा सकते हैं कि ही इज़ इन द क्लास, इज़ MR का यूज़ करके उसको कुछ सेंटेंसेस फ्रेम करके. तो वो टेक्निक, या फिर कुछ गेम्स क्रिएट कर सकते हैं, या कन्वर्जेशन वे में भी पढ़ाया जा सकता है इस तरीके से. तो टेक्निक जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है टीचर के लिए कि वो कुछ ऐसा करे ताकि स्टूडेंट्स ईज़िली उस चीज़ को समझ सकें. और ये एक्टिविटी बेस्ड है, काफ़ी कुछ डिपेंड होता है. हमारी टीचिंग जो है वो टेक्निक के ऊपर ही निर्भर है. टॉपिक तो कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा मेथड और हमारी टेक्निक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लुक एट दिस पिक्चर है. यहाँ पर जो है मैंने ड्रॉ किया है कि टेक्निक, मेथड एंड अप्रोच. अप्रोच इज़ वाइडर, अप्रोच इज़ लार्जर देन मेथड, मेथड इज़ लार्जर देन टेक्निक. देखा जाए तो अप्रोच बड़ा है, उसके बाद हमारी मेथड है, और टेक्निक एक स्पेसिफाइड है टेक्निक हमारा जिसमें हम पढ़ाते हैं. नाउ सी द कंक्लूजन. Approach, a set of assumptions dealing with the nature of language, learning and teaching. अप्रोच जो है वो एक तरीके से एजम्पशंस हैं जो कि हमारी लैंग्वेज को, हमारी लर्निंग को और हमारी टीचिंग को कारगर करता है कि हम उस तक पहुंच रहे हैं. हमारी अप्रोच है, हमारी पहुंच है यहाँ तक. मैथड जो है, इट इज़ एन ओवरऑल प्लान फॉर सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज बेस्ड अपॉन ए सिलेक्टेड अप्रोच. यानी कि हमारा जो एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है वो मेथड के द्वारा ही प्लान किया जाता है कि हम इस मेथड के द्वारा हम अच्छे से उस अप्रोच तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने एक प्लान किया, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको किया है. टेक्निक जो है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ मैनिफेस्ट इन द क्लासरूम दैट आर कंसिस्टेंट विद द मेथड and therefore is harmony with an approach. टेक्निक जो है एक साइंटिफिक वे है जो कि क्लास में इट्स क्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ लर्निंग समथिंग विद अ न्यू वे बाय प्लेइंग, बाय गेम्स, बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग, बाय ड्रिलिंग और बाय डूइंग सम एक्सरसाइजेस. सो इन दिस वे अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक, दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. तो यहाँ पर आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू कि मैथड, approach, method and technique, they are related with each other. अप्रोचेस और मेथड तो कम से कम हम लोग एक जैसे ही कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो हमारी टेक्निक है. टेक्नोलॉजी इसके द्वारा ही हम पढ़ा रहे हैं. आजकल सबसे ज़्यादा हम प्रोजेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल मेथड को भी यूज़ किया जा रहा है. तो ये क्या, ये हमारी टेक्निक है, ये मेथड में नहीं आएगा, ये टेक्निक में आएगा कि हम इन टेक्निक्स को यूज़ करके क्लास को अच्छा बना रहे हैं. तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. थैंक यू ऑल.